ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ: ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਸ ਐਂਡ ਸੋਲਵੇਟ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਈਸੋਮਰਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਰਗੈਨਿਕ 'ਚ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ: ਕਨਫਰਮਰਸ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡੈਕਸਟਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਲੈਵੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੋ ਆਈਸੋਮਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਿੰਕੇਜ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਫੇਵਰੇਟ K4FeCN6, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ CN ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ 6 ਦੇ 6 ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਆ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ CN ਔਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਇਨਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ NaCl ਹੈ ਉਹ Na+ ਔਰ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, MgCl2 ਹੈ ਉਹ Mg2+ ਔਰ Cl- 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਕੋਈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਆ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗਾ, 4 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ FeCN6 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਟ Fe ਔਰ Cn ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਇਨਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਇਓਨਾਈਡ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਔਰ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ionization isomerism, this form of isomerism arises from the interchange of ligands. This type of isomerism arises from the एक मिनट, सॉरी, फ्रॉम द गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज फ्रॉम, तो आगे सारा काट दो। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज when the counter ion
when the counter ion in a complex salt displaces a ligand, when the counter ion in a complex salt displaces a ligand which can then become the counter ion, which can then become the counter ion. For example, cobalt NH3 5 सल्फेट Br ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ and cobalt NH3 5 Br sulfate are ionization isomers. देखो ध्यान नाल देखते हैं, पहले एक बारी नोट कर लो। ठीक है, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ, 5 ਅਮੋਨੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰੋਮਾਈਡ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। बट अगर मैं उपर वाले नू आयोनाइज करने की कोशिश करूँगा तो ये Br नैगेटिव अलग हो जाएगा और आ सारा पॉजिटिव अलग हो जाएगा, यानी कि ये मैनू ब्रोमाइड दी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। बट अगर मैं नीचे वाले नू चैक करा, नीचे वाले च ब्रोमाइड लिगेंड बन गया तो यह मतलब ब्रोमाइड अलग नहीं हो सकता। तो अगर मैं इनू आयोनाइज करा तो ये मैनू सल्फेट SO4 2 नैगेटिव अलग हो जाएगा और आ सारा कैटाइन अलग हो जाएगा। तो ये मैनू सल्फेट दी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। कहने का मतलब हैगे दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट जो इन्हों आयोनाइज किया जाता है तो अलग अलग चीज़ां मिलदियां ने, तो ये दोनों एक दूसरे दे आयोनाइजेशन आइसोमर बन गए। फॉर्मूला सेम होना आइसोमरिज्म के लिए सब तो जरूरी है, हाई आइसोमर जो होंगे ने, तो फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज़ इन्हां दी बदल गई। ये सानू सल्फेट आयन देगा, ये सानू ब्रोमाइड आयन देगा। तो ये दोनों यह जे कंपाउंड्स नू आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना नू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पूरा कॉन्सैप्ट समझ आ रहा है? ठीक है जी, फिनोमिना या ये कॉन्सैप्ट नू, ठीक है, इन्ना पार्ट समझ आ रहा है जी। हुण फोर्थ टाइप पढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बिल्कुल आयोनाइजेशन वर्गी ही होंदी है, सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर वाटर एज अ लिगेंड मौजूद होएगा और दूजे कंपाउंड के अंदर वाटर एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन मौजूद होएगा। वाटर ऑफ हाइड्रेशन केड़ा हुंदा है? तुसीं कई बारी कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़िया होना, जिमें CuSO4.5H2O। तो जिहड़ा .5H2O है वो कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर किवें है, वो एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन मौजूद है ना, यानी कि वो सॉलिड के अंदर उन्हें वाटर सोख कर रखे, 5 मॉलीक्यूल उन्हें सोख कर रखे ने, तो आपां नाल डॉट पा के लिख दिंदे आ। ठीक है जी, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बिल्कुल आयनाइजेशन वांगू है, सिर्फ ये आयन का फर्क नहीं है। ये अंदर एक कंपाउंड च वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट होएगा तो दूजे च वाटर एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होएगा। पहले मेरी डेफिनेशन लिखवाना, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाल स्लैश पा के इहदा दूसरा नाम भी लिख लो, इनू हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। नोट कर लो पहला एक बारी। ठीक है, ये अंदर लिखो, दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर बाय solvate isomers differ by whether or not a solvent molecule solvate isomers differ by whether or not a solvent molecule
is directly bonded to the metal ion, is directly bonded to the metal ion, or just present as free solvent molecules, or just present as free solvent molecules in the crystal lattice. In the crystal lattice. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਗੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਵੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੋਖ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Cr H2O6 Cl3 and Cr H2O5 Cl2 dot H2O, ये दोनों की ने आर सॉल्वेट आइसोमर्स। ठीक है, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ क्या ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲकुल सेम है। एक एक क्रोमीयम है, इस उपर वाले 6 वाटर ने, नीचे वाले दे अंदर 5 वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट ने, एक वाटर एज अ डॉट पाया होया ना, तो एक वाटर एज अ वाटर ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है। 3 Cl ने 3 Cl ने, तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ वही डिफरेंस भी उपर वाले दे अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, और नीचे वाले के अंदर एक सॉल्वेंट एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट है। तो ये दोनों इन्हों दोनों नूं बोलिया जाएगा यह एक दूसरे के किहड़े आइसोमर हो गए, सॉल्वेट आइसोमर्स, ठीक है जी। तो ये ना अपना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की सीगा, स्ट्रक्चर बदल रहा सी। कल वाला लैक्चर देख लो, वो अंदर आप 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े सीगे, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अज पढ़ लिया आप, तो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम आप नैक्सट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो हैडिंग लिख लो स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की गल कर रहे हैं, आप होर किसी की गल नहीं कर रहे, ठीक है। हैडिंग लिख लो स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। पहला तो ये बारे ये थोड़ी जी डेफिनेशन लिख लें। इस लिखो स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला and same chemical bonds. Stereoisomers have the same chemical formula and same chemical bonds, but have different spatial arrangement. जिस तरह मैं दस रहा सी, but have different spatial arrangement, ठीक है ना। बॉन्ड जिधर जिस एलीमेंट से जुड़ी हुई है वो सेम है, सिर्फ बॉन्ड की डायरैक्शन का फर्क पै जाता है, ठीक है ना। ये हो गए स्टीरियो आइसोमर्स। ये अंदर पहला लिखो ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म। ये जिहड़ा हुण आपां अज पढ़ांगे ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान नाल सुनियो। ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म हैगा सिर्फ यही है सिज एंड ट्रांस, ठीक है। हुण ना ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली 2 तरह की शेप्स च देखा जाता है। वो दोनों शेप्स तुहानूं अच्छी तरह याद होनी चाहिए ने। एक हैगी है स्क्वायर प्लेनर और एक हैगी है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो पहला आपां स्क्वायर प्लेनर की गल करते हैं। इत्थे लिख लो GI, GI मतलब ज्योमैट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर। पहला आप स्क्वायर प्लेनर की गल करते हैं। स्क्वायर प्लेनर च GI किवें किवें हो सकता है। हुण देखो स्क्वायर प्लेनर किहो जी शेप हुंदी है, एक सेंटर च मैटल हुंदा है, उहदे आले दुआले 4 लिगेंड्स जुड़े हुंदे ने, किन्ने डिग्री एंगल ते 90 डिग्री एंगल ते सारे, और ये सारा कुछ एक प्लेन दे विच पिया हुंदा है,
90 डिग्री। पहली गल तो ये शेप याद होनी चाहिए है। हुण मैं ਇਹਦਾ मतलब ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਨੇ ਟੋਟਲ 4 ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਬੌਂਡਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੌਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ 4 ਬੌਂਡਸ ਵਾਲੇ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 ਬੌਂਡਸ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 4 ਬੌਂਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲਿਗੈਂਡਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਲਿਗੈਂਡਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਲਿਗੈਂਡਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲਿਗੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਡਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਡਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਗੈਂਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਿਗੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਿਗੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲਿਗੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲਿਗੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖੋ Ma2B2। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਿਗੈਂਡਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 2 ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 2 A ਨੇ, 2 B ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 4 ਨੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਸ਼ੇਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ M ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ठीक है। चेक करो क्या ये सिस है या ट्रांस है। देखो ए वाले लिगेंड दे बिल्कुल नाल ही उहदे वर्गा लिगेंड पे सिस है, भावें बी नूं चेक कर लो, बी वर्गे दे बिल्कुल नाल ही बी पे है, तो ये की बन गया, ये मेरे को बन गई सिस फॉर्म। अच्छा ये ट्रांसफॉर्म किवें बनेगी, देखो किसी भी एक नूं चक के इधर उधर शिफ्ट कर दो, मान लो इस तरह नाल, ठीक है। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ M ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ B ਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। M ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ A ਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ MAB, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर च आएगा कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PTNH3 ट्वाइस Cl2। चेक करो आह वाला बिल्कुल आही फॉर्म है, मैटल है जी, एक लिगेंड सेम 2 बार है, दूजा सेम 2 बार है, अमोनीया 2 बार है, क्लोराइड 2 बार है, बिल्कुल उपर वर्गी टाइप है। तो बिल्कुल इस तरह नाल सेंटर च प्लैटिनम बना के, है ना। अगर मैं अमोनीया कोई भी चक लो, चाहे अमोनीया चाहे क्लोराइड आप ही आ जाएंगे, अमोनीया क्लोराइड। चेक करो सिमिलर नाल वाली साइड ते ने, तो ये बन गया, ये बन गया सिस। अगर मैं इस तरह नाल बनाना है, प्लैटिनम अमोनीया सेम वाले बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, देखो तो फिर क्लोराइड भी बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। ये किहड़ी फॉर्म बन गई, ये बन गई जी ट्रांस, ठीक है ना। तो तुहानूं पेपर च आएगा जी कि प्लैटिनम अमोनीया ट्वाइस क्लोराइड ट्वाइस, ये सारे दा ज्योमैट्रिकल आइसोमर बनाओ। तो तुहानूं ज्योमैट्रिकल आइसोमर सुनते ही पता लगना चाहिए कि सिस ट्रांस की गल की जा रही है। पहली टाइप समझ आ गई ना, Ma2B2 किस तरह नाल बनाना, ठीक है। अच्छा ये अंदर होर भी देखते हैं आप, चलो मैं दूजी टाइप बनाना है। मान लो पेपर च आ जाए Ma3B या AB3, कुछ भी लगा लो, ठीक है। और MAB3 मतलब तो सेम ही है ना, भी एक यूनीक है, 3 सेम तरह के। चेक करते हैं क्या इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है या नहीं बन सकता।
ठीक है। ये भी हो सकता भी नहीं बने, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो जी, हुण कोई भी एक बी, हुण बी है लगा लिया, ए तीन तीन ने देखो, ए इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। हुण ए एक दूजे तो ऑपोजिट ने तो ट्रांस दिख रहा है, पर ए एक दूजे के नाल भी तो पे ने, तो सिज भी तो बन रहा। जिमें मर्जी इनू घुमा लो फिरा लो, हमेशा एम ही होएगा भी ए सिज भी बन रहा होगा, ट्रांस भी बन रहा होएगा। कहने का मतलब कोई अलग अलग नहीं है, तो ये काटा मार के नो जी आई पॉसिबल। तो ये वाले जोड़े कंपाउंड होंगे ने जिस तीन एक तरह के ने, एक अलग है और स्क्वायर प्लेनर भी ने, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होता। देख लियो, नो जी आई पॉसिबल। पॉइंट तो आई गया, समझ आ रहा होएगा ना, ठीक है। फटाफट बनाई जाओ इनू, नाल 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 समझी जाओ। अच्छा एक होर करते हैं, देखो एम ए टू एक ही चीज़ है। हुण ए बेसिकली एक डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड विद सिमिलर डोनर एटम्स, यानी कि डाइडेंटेट आपको पता ना भी दो बारी जुड़ता होंगे, ठीक है। हुण ये दो बारी जो जुड़ रहे ना एटम्स ये सेम ने। मैं एग्जाम्पल समझाना पहले, तो इदा देख लो। हुण बॉन्ड्स तो चार ही बना रहे, क्योंकि डाइडेंटेट लिगेंड दो बार जुड़ता है, तो अगे भी दो ने यह जे, तो चार बार जुड़ गया, ठीक है। हुण देखो एम के आले दुआले स्क्वायर प्लेनर शेप बनानी है जी, ठीक है। इक्को लिगेंड दो बार जुड़ा होया, तो मैं इत्थे ए इस तरह नाल, आ देखो इधरों आ ए डोनेट कर इनू इत्थे बना दें, सॉरी इत्थे सीधी लाइन खिंच दें, आ सी ए ने इधरों डोनेट किया, दूजे ए ने आपस भी जुड़े हुए ने, इधरों डोनेट किया। हुण चैक करो क्या इस जी आई पॉसिबल है। ए दे ऑपोजिट भी ए है, ए दे नाल भी ए है, ए दे ऑपोजिट ए है, नाल ए है, जिधरों मर्जी देख लो, भावें जिधर मर्जी लाई चलो, हमेशा सिज ट्रांस दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब नो जी आई पॉसिबल। यदि मैं एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल नाल बैटर समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं आ देखो यदि एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे को है पी टी ई एन ट्वाइस टू पॉजिटिव, सही है ना। ई एन याद है ना, इथेन 1 2 डायमीन, मैं इतने नाल लिख देना ई एन की होंगे, याद होना। वैसे ई एन होंगे NH2 CH2 CH2 NH2। इधर नाइट्रोजन डोनर होंगे, इधर भी नाइट्रोजन डोनर होंगे, बिल्कुल ही सिमिट्रिकल जा ये कंपाउंड है, ठीक है। हुण देखो प्लैटीनम के आले दुआले मैं इधर ई एन जोड़दा, यानी कि NH2 CH2 CH2, दिख नहीं रहा आई गैस, हाँ जी NH2 CH2 CH2 NH2। इधरों इस एन ने लोन पे डोनेट की, इधर इन्हें दूजे साइड देखो NH2 CH2 CH2 NH2। चेक करो क्या इससे सिस ट्रांस पॉसिबल है। सारे पासे तो बिल्कुल ही सिमिटर ही है, तो ऑपोजिट जुड़ना और नाल जुड़ना ये तो कोई फर्क ही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो ना। तो ये अंदर भी कोई नो जी आई पॉसिबल। तो अगर पेपर च आ जाए कि PTN2 ट्वाइस 2 पॉजिटिव के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, तो तुम कहना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीजन भी दस देना, क्योंकि देख लो इस तरह बना के भी सारे पासे इस सिमिटर ही है, ठीक है। फटाफट इन्हों नोट करो इत्थे तक। डोनर है, सिमिलर डोनर एटम्स। नोट कर लिया जी। चलो हुण मैं डाइडेंटिटी बना रहा, पर इस बार डाइडेंटेट यह होएगा जिस डोनर एटम अलग अलग तरह के हैं। किनवा सीगा, थर्ड सीगा ये, फोर्थ देखो मेरे को आ गया MAB ट्वाइस, ठीक है। ये AB की है
ए बी एक डाइडेंटेट लिगेंड विद टू डिफरेंट डोनर एटम्स, डाइडेंटेट लिगेंड विद टू डिफरेंट डोनर एटम्स ए बी, राइट। हुण देखते हैं एम दे आले दुआले, हुण ए बी इस तरह इधरों ए डोनेट कर रहे, इधरों बी डोनेट कर रहे, तो इधर आ गया ए बी डोनेट कर रहे, 4 बॉन्ड्स हो गए। हुण चैक करो ए दे नाल ए है, बी दे नाल बी है, यानी कि यह सिज फॉर्म बन गई। ट्रांस देखते हैं, अगर इधरों ए बी हले डोनेट ए बी कर रहे, तो इधरों ए बी डोनेट करन दी डायरैक्शन बदल गई, बस डोनेट तो हले भी ए बी दोनों ही कर रहे हैं। हुण चैक करो ए दे ऑपोजिट ए है और बी दे ऑपोजिट बी है, तो ये किहड़ी फॉर्म बन गई? ट्रांस। पर जो दोनों ही ए सीगे तो फिर तो घुमाण नाल कोई नवीं चीज़ बन ही नहीं रही सी, बिल्कुल सेम ही चीज़ रिपीट हो जा रही सी सारे पासे, तो उहदे च ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं सीगे। बट अगर ए बी अगर डाइडेंटेट लिगेंड 2 लगे हुए ने, राइट, तो दोनों के विच अलग अलग डोनर एटम्स ने, तो इस तरह नाल भी सिज ट्रांस पॉसिबिलिटी बन जाती है। मैं यदी भी एग्जाम्पल एक समझा दिना है, ठीक है। हुण जिवें एक ना लिगेंड हुंदा है ग्लाइसीनेट, ये मैं लिस्ट च लिखवाना भुल गया, ग्लाइसीनेट, ठीक है। हुण ग्लाइसीनेट किहो जिहा हुंदा है? NH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ग्लाइसीनेट लिगेंड है। यह N तो भी डोनेट कर सकता है और यह वाले O माइनस तो भी डोनेट कर सकता है। देखो ये डोनर एटम अलग अलग ने, डाइडेंटेट लिगेंड है, डोनर एटम अलग अलग ने, सही है ना। हुण मैं यदी एग्जाम्पल देना, देखो PTGLY ट्वाइस 2 नैगेटिव, ग्लाइसीनेट नूं GLY दे नाल लिखते हैं, ठीक है। ग्लाइसीनेटो बन गया क्योंकि ये उत्ते माइनस चार्ज भी है, तो लिगेंड दे माइनस चार्ज O बन जाना हुंदा है, याद है ना लास्ट रूल्स। PTGLY ट्वाइस 2 नैगेटिव। हुण देखो मेरे को इत्थे प्लैटीनम है, इधर मैं बनाया NH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इधरों O ने डोनेट करता, और इधर देखते हैं NH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इधरों इन्हें डोनेट करता, इधरों इन्हें। चेक करो N दे ऑपोजिट N है, O दे ऑपोजिट O है, बन रहा है ना। तो ये जी किहड़ी फॉर्म बन रही है? ये साडे कोल बन रही है ट्रांसफॉर्म, स्क्वायर प्लेनर ही है, देखने नहीं लग रहा। इस तरह नाल अगर मैं इनू ज्वाइन करवावां इस तरह नाल, तो स्क्वायर प्लेनर शेप ही है, ठीक है। देखो हुण जे हुण जे लिगेंड दे बदलण दे नाल देखो कितना ज़्यादा फर्क पै रहा है, पॉइंट समझ आ रहा है ना। और अगर यदि ट्रांसिस फॉर्म बनानी हो तो किमें रहेगा? देखो PT दोनों नूं सिमिलर डायरैक्शन तो अटैक करा दो, NH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर भी एम अटैक करवा दो, NH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। चेक करो, देखो बिल्कुल है ना। हुण N दे सामने N है, O दे सामने O है, तो ये किहड़ी फॉर्म बन गई? सिज। और इस तरह नाल ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर प्लेनर पैकेज है। लॉजिक समझ आ रहा है ना। तो ये सारिया टाइप्स याद रखनियां ने, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, नोट कर लो फटाफट, वीडियो नूं पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, सही है ना। चलो एक और करते हैं, एक नवी टाइप, ये हो गई 4 हो गई मेरे को। 5th ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म, हाले ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म जो स्क्वायर प्लेनर ही चल रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर के अंदर टोटल 5 टाइप्स बन सकदियां ने। मेरे को आ गया MABCD, चलो 4 लिगेंड्स ने, चारों अलग अलग तरह के ने, ठीक है। हुण मैं पहली गल तो पहला तो रैंडम ही पढ़ाना, ABC और D। हुण ना बच्चे ना जो भी देखते हैं चारों अलग अलग तरह के ने, तो ऑपोजिट और नाल वाली पॉइंट खत्म हो गया, तो लिख देंगे ने नो ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। इस च की करना हुंदा है, इस च अपनी मर्जी के नाल कोई भी 2 सिलेक्ट करो, कोई भी 2 सिमिलर नेचर के मन के चलो। जिवें मैं मन के चलदा
ਵੀ A ਔਰ D ਸਿਮਿਲਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ, मैं ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਸ टाइम ਤੇ A ਔਰ D ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋजिट ਨੇ, यानी कि ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ट्रांस। सही है ना। मैं की करदा A और D ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਆਣਾ, A ਨਾਲ ਲਿਆਤਾ D, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ C, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ B। ਹੁਣ A और D ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, यानी कि सिज बन सकता है। क्या होर भी कुछ है? अगर मैं B और C ਨੂੰ आपस 'ਚ ਇਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਰੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, A और D और इधर B आ गया, ਹੁਣ ਇੱਧਰ C आ गया, ਇਹ ਵੀ ਸਿਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ क्या दोनों 'ਚ फर्क है? सर ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ क्या ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਿਜ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀ ਜਾਓ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆਇਆ, ਫਿਰ C ਆਇਆ, ਇਸ 'ਚ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਆਇਆ, ਫਿਰ B ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ C ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ D ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ B ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ D ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਟਰਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ A ਔਰ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ B ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ B ਔਰ C ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ M ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਿਗੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ 3 GI ਪੋਸੀਬਲ। ਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਟੋਟਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ, 3 ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਜ ਫਾਰਮਸ ਔਰ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ट्रांसफॉर्म। गल समझ आ रही है? ठीक है ना। तो अगर एक दे आले दुआले चारों लिगेंड्स अलग तरह के ने तो उहदे चों 3 फॉर्म बननगियां टोटल, जिहदे विचों 2 सिज होणगियां, एक ट्रांस होएगी। नोट करो फटाफट। थोनों बस दिक्कत यह है कि पेपर च MABCD एवं नहीं आएगा, पेपर च कोई कॉम्पलैक्स कंपाउंड लिखा होएगा, तुसी बस मैं दिमाग च रखना है, कोशिश करनी है मैच करने की भी हाँ ये किहदे वर्गा लग रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर के अंदर अपने को 5 टाइप्स ने। जिहड़ी टैट्राहेड्रल हुंदी है, क्या उस ज्योमैट्रिकल आइसोमर पॉसीबल है? देखो जिहड़ी टैट्राहेड्रल है ना, ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है, हर एक चीज़ ये अंदर 109 डिग्री ते डिस्टेंस ते है। तो ये अंदर वो गल खत्म हो जाती है भी इनू ये ओपोजिट ला दो या इनू ये नाल ला दो, क्योंकि तुसीं जिधर मर्जी ला दो, कोई ओपोजिट या नाल वाली कंसैप्ट नहीं है उहदे अंदर हर चीज़ बस एक दूसरे तो 109 डिग्री की दूरी ते है। तो टैट्राहेड्रल के अंदर ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता ही नहीं है, पॉसीबल ही नहीं है। ये नाल एक नोट बना के तुसीं लिख भी सकते हो, लिखियो नोट, नोट GI मैं शॉर्ट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा है, चीज नहीं पता लग रहा। GI इज नॉट पॉसिबल फॉर tetrahedral complexes. GI is not possible for tetrahedral complexes. For tetrahedral complexes, ठीक है। नैक्सट शेप लिखते हैं, वो सी स्क्वायर प्लेनर, वो लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल। टैट्राहेड्रल वास्ते नहीं हुंदा, स्क्वायर प्लेनर आप कर ले ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बहुत सौखा है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 3 ही टाइप्स आंदियां ने, ठीक है। पहला लिखो ऑक्टाहेड्रल च टोटल 6 बॉन्ड्स होंदियां ने, सारिਆਂ ਨੂੰ याद होगा, पहला चलो मैं नवी रिवाइज करवा दिना, ठीक है। ਜਿਹਦੇ अंदर 4 बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर वांगू ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, एक प्लेन ਦੇ बिल्कुल ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ है, एक प्लेन ਦੇ बिल्कुल नीचे ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਆ टॉप वाला है या बॉटम वाला है, ये प्लेन वालिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 90 ਤੇ ਹੁੰਦਾ है, ऑपोजिट वाले ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 180 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦਾ है, पता होना ये चीज़, ठीक है। तो मैं इधरले पेज से बना देना। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर पहला लिखो, पहली टाइप
MA4B2 यानी कि 4 एक तरह के 2 एक तरह के, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸ ਟਰਾਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸ ਔਰ ਟਰਾਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਟਲ ਲਾਤਾ, 2 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਪ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ, प्लेन वाले प्लेन च रख दो, तो 4 ए बचे, चारों ए प्लेन च रखते। आ लो जी, हुण ना ए नूं नहीं देखना, क्योंकि जिहड़े 4 ने वो तो सिस ट्रांस दोनों ही होणगे। हुण चैक कर लो, आ ए ओपोजिट ट्रांस है, आ ए नाल पिया सिस है, तो ए नूं नहीं देखना। कट वाले नूं देखो, बी, आ बी एक दूजे तो बिल्कुल ओपोजिट पे ने 180 डिग्री ते, यानी कि ये किहड़ी फॉर्म बन गई, ये बन गई मेरे कोल जी ट्रांस। सही है। और अगर मैं इनू नाल रखने की कोशिश करदा, मान लो मैं एक बी नूं उपर वाले नूं नहीं छेड़दा, हुण मैं दूजे बी नूं इहदे नेड़े लियाना है, तो प्लेन च किते भी रख दो तो 90 डिग्री ते ही रहेगा। मान लो आ प्लेन च नाल वाली जगह ते रखता, बाकी बचे ए, देखो ए इधर भी आ गया, ओपोजिट भी आ गया। तां ही तो कह रहा मैं ज़्यादा वाले नूं तो देखना ही नहीं, घट वाले वाल ध्यान देना है। हुण चैक करो, आ बी और आ बी एक दूजे तो परपेंडिकुलर आ गए, इत्थे एक दूजे के बिल्कुल ओपोजिट सीगे, तो ये किहड़ी फॉर्म बन गई, ये बन गई मेरे कोल सिस। लॉजिक समझ आया, ये नहीं आया, ठीक है ना। तो इदां इहदी मैं एग्जाम्पल एक करवाना हुणे, जिवें आ देखो तुसीं आ एग्जाम्पल दी बिल्कुल इहदे वर्गी एग्जाम्पल है, कोबाल्ट अमोनीया 4Cl2 पॉजिटिव। चैक करो किवें होएगा जी। ये 4 एक तरह के 2 एक तरह के, ऑक्टाहेड्रल तो हैगा ही है, 6 बन रहे हैं टोटल। कोबाल्ट है जी, घट वाले वाल ध्यान दो, क्लोराइड ओपोजिट लगाता। अमोनीया तो ज़्यादा ने, तो सिस ट्रांस दसणगे ही नहीं, घट वाला दसेगा। इस तरह नाल देखो ओपोजिट बन गए ना, आ किहड़ी फॉर्म बन गई मेरे कोल ट्रांस। और अगर मैं एवें बनांदा क्लोराइड उपर, हुण क्लोराइड नूं इहदे नेड़े लिआंदा प्लेन च, जिधर मर्जी लगा दो वैसे तो ठीक है, पर कई बार मैं इत्थे लगाना तो बच्चे पूछते सर ये तो दूर हो गया जी। दूर नहीं होया ना, आ सारे नाल ही 90 ते है, वो तो हुण कॉपी ते बनाना औखा है 3D फिगर। आ देखो परपेंडिकुलर आ गया, ये किहड़ी फॉर्म बन गई, ये बन गई सिस। बनाओ फटाफट बना लो, वीडियो पॉज कर लो और इनू बना लो। कर लिया नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। लो बी सैकेंड देखते हैं आपां हुण। दूजी टाइप हैगी है, देखो MAA2B2, यानी कि जिहदे अंदर एक डाइडेंटेट लिगेंड हो गया। डाइडेंटेट लिगेंड 2 बारी जुड़िया होया तो 4 बॉन्ड्स बना लिया। दूजे बी ने, बी यूनिडेंटेट है तो 6 बॉन्ड हो गई टोटल, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ने फिर वही ज़्यादा वाले नूं नहीं देखना, घट वाले नूं देखना है, यानी कि मैं बी वाल ध्यान दूँगा, ठीक है। मैं दी एग्जाम्पल ही करवा दिना, एग्जाम्पल दे नाल बेटर समझ आएगा। ये एग्जाम्पल देख लो, जिमें मेरे को आए COCl2En ट्वाइस, है ना। हुण आ यूनिडेंटेट लिगेंड है, 2 बार जुड़ गया, आ डाइडेंटेट है 2 बार है, तो यानी कि 4 बार जुड़ गया, ठीक है। चलो जी, घट वाले वाल ध्यान, यानी कि क्लोराइड। पहली गल क्लोराइड ओपोजिट बनाता, ठीक है। हुण EN तो इस प्लेन च ही रह जाएगा, फिर NH2 CH2 CH2 NH2, और इधर भी की आ जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2। लो जी, इन्हां नूं नहीं देखना, आ दोनों एक दूजे तो ओपोजिट जा रहे हैं, तो क्या बन गया मेरे कोल ट्रांस। आगे देखते हैं। हुण अगर मैं एक नूं ओपोजिट नहीं रखूँगा, एक नूं नाल रख दूँगा। हुण इत्थे ध्यान देना थोड़ा जिहा, इनू बनाना किवें हुंदा है। इत्थे मेरे कोल NH2 CH2 CH2 NH2। हुण बनाना किवें, ध्यान नाल देखो। जिहड़ा आ हुण NH2 ये सारा है, ये एक इत्थे बॉन्ड बनाएगा, एक प्लेन तो बाहर बॉन्ड बनाएगा, एवें बनाएगा ना। तैनूं इस तरह नाल बनाना, देखो NH2 एवें थोड़ा जिहा कर्व दे के दिखाना है, CH2 CH2 NH2।
ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਕਰਵ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਜ਼, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸ। मैं प्लेन भी दिखा दिना, आ पिया मेरे को प्लेन, ठीक है ना। आ देखो ये अद्धा प्लेन दे इस एंगल तो जुड़ रहा है, अद्धा प्लेन दे बॉटम एंगल तो जुड़ रहा है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी लिगेंड है। आ वाला पार्ट इन्हें कवर कर लिया, नोट कर लो फटाफट। कर लिया जी नोट। ਇਹਦੀ तीसरी टाइप पढ़ते हैं। ਇਹਦੀ तीसरी टाइप हैगी ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ जी कंसीडर ਹੁੰਦੀ है, बस ਉਹਦਾ नाम थोड़ा ਜਿਹਾ अलग है, ਉਹਨੂੰ ਸਿਜ਼ ਟਰਾਂਸ नहीं बोलते हैगे, ठीक है। ਉਹਦਾ नाम कुछ होर है, ਉਹਨੂੰ बोलते ने फेशियल एंड मेरीडियोनल। की ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, देखो MA3B3 हैगे टोटल 6 बन गए, 3 एक तरह के 3 एक तरह के, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ है, देखो ਹੁਣ ਨਾ ऑक्टाहेड्रल ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਫੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ऑक्टाहेड्रल ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ टॉप या बॉटम ले लो, आहा हो गया मान लेने, और कोई भी नाल वाले दो, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੇ मैं इन्हों मिलावा ना तो एक इधर फेस बनता है। आ जिमें मान लो मैं इन्हों मिलाना है तो देखो आ इस साइड वाला फेस बन रहा है ना, कोई भी दो चक लो, भावें टॉप और इन्हों दोनों को मिला दो, आ देखो तो फ्रंट वाला फेस बन रहा ना, भावें टॉप और इन्हों दोनों को मिला दो, आ देखो तो लैफ्ट साइड वाला फेस बन रहा है, और अगर टॉप और इन्हों दोनों को मिला दे तो पिछे वाला फेस बनता ना, सेम थले है। तो हुण MA3B3 च की है, जे कोई 3 एलीमेंट एक 3 लिगेंड एक फेस का पार्ट होणगे तो उन्होंने फेशियल बोलिया जाएगा। जे कोई 3 लिगेंड एक फेस का पार्ट होणगे, जिमें हुण A3 ने मैं 3 ए नूं ना फेस ते रखदा, आ देखो फेस का पार्ट बनने के लिए ये और एक टॉप ते चला गया है ना। तो देखो B भी अपने आप ही फेस का हिस्सा बन गया, B इधर है और नीचे है। जे मैं इन्हों ज्वाइन करा, चेक करो क्या ए फेस का हिस्सा बन रहा है, आ दोनों और टॉप, अगर मैं इन्हों मिलाऊंगा, ठीक है, तो एक फेस का हिस्सा बन रहे हैं ना, भावें बी देख लो, अगर मैं इन्हों दोनों और इनू मिलाऊंगा तो एक फेस इस साइड वाला फेस बनेगा, तो ये बन गया मेरे को FACIAL, इनू बोलते हैं फेशियल, या शॉर्ट च FAC लिखते हैं, ठीक है। हुण मान लो मैं फेस का हिस्सा नहीं बना रहा, कोई 3 सेम तरह दे इक्को प्लेन च रख रहे हैं, जिमें मैं एग्जाम्पल लेना, मैं इत्थे मेरे को M है, मैं मान लो उपर वाले जे ए उपर रहेगा तो फेस का हिस्सा रहेगा, इत्थों हटा के इत्थे नीचे ले आंदा, फिर B ने इसकी जगह ले ली तो उपर हुण बन गया B, और या अगे ले आंदा मान लें, तो इधर आ गया A, एक ए आ गया इधर, एक ए आ गया इधर, इधर B, ठीक है ना। हुण देखो हुण B कोई फेस का हिस्सा नहीं है, फेस के हिस्से लिए टॉप चाहिए और नाल कोई भी 2 प्लेन वाले चाहिए ने, पर टॉप को इक्को प्लेन वाला है, एक तो दूजे प्लेन च, बट जोड़े A3 ने उन्होंने एक आ वाली ट्रायंगल बना ली, उन्होंने सेंटर वाले स्क्वायर नूं एवें 2 पार्ट च कट कर रखे, तिन्हों ने मिल के, तीनों इक्को तरह के ए ने मिल के कर लिया ना। इनू कहते हैं मेरीडियोनल, ये जिवें सिज ट्रांस हुंदा है उहदे वर्गी ही एक दूसरी फॉर्म है, या शॉर्ट च MER लिखते हैं, ठीक है। मैं चलो इधर फेस भी बना ही दिना, कोई किसी ने भी ज्वाइन कराया होया, आ ज्वाइन कराया होया, तो आ देखो आ वाला मेरा फेस है, ठीक है ना। तो अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है और अगर एवें दी एग्जाम्पल है भी 3 एक तरह के 3 दूसरी तरह के, तो वो अंदर 2 पार्टीशन बननगियां, फेशियल और मेरीडियोनल। नोट करो फटाफट, अब बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी आ दोनों नोट करो जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज कर लो। मैं जिमें यदि की एग्जाम्पल दिखाना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया सीगा ना, मैं यदि एग्जाम्पल दिखाना है, देखो मान लो मेरे को आए कोबाल्ट अमोनिया थराइस NO2 थराइस, चेक करो दोनों यूनिडेंटेट लिगेंड है, 3 बारी जुड़े हैं तो 6 बॉन्ड्स हो गई हैं, ठीक है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਬਾਲਟ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, NO2 ਨੀਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਅਮੋਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਫੇਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫੇਸ਼ੀਅਲ, FAC। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, NO2 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅਮੋਨੀਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅਮੋਨੀਆ, नीचे आ गया अमोनिया। सही है जी। चेक करो, सारे इको प्लेन का पार्ट बन रहे हैं। ये बन गया MER यानी कि मेरिडियोनल, ये बन गया FAC फॉर्म। हो जाएगा इन्ना पार्ट, ठीक है। तो एक बार इनू अच्छी तरह नाल सारे लैक्चर नू देख लो, रिवाइज कर लो, पढ़ लो, ठीक है। ये आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ਇਹਦਾ मंडे लाइव क्लास कवर करांगे जी, ठीक है जी। इन्ना पार्ट समझ आ रहा है। यही अपना ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स अज कवर होया। थैंक यू सो मच।